Good morning, students. Today we are going to study the sixth lesson of class 8th science, that is metals and non-metals. We generally come to know there are about 110 elements in this nature. Out of that, 24 are non-metals, whereas other are the metals. So we are going to study today about the physical and chemical properties of metals as well as non-metals. Now, what do you mean by metals? If you want the furniture, what do we think? What comes first? First we think that the material should be strong, isn't it? आपको अगर फर्नीचर बनाना है तो सबसे पहले आपके मन में बात आती है कि कौन सा मटेरियल यूज़ करें ताकि वो हमारा जो फर्नीचर है वो स्ट्रॉन्ग हो. सो द फर्स्ट थिंग इज़ दैट मेटल्स आर स्ट्रॉन्गर. Metals are stronger, and these metals, their basic property is their strength, that is their tensile strength, that is how much strength that substance or that metal is having, that is most important. And generally all the metals except sodium, they are soft, they can be cut with the help of knife. Other than that, most of all the metals are strong enough, that is they are hard, and because of their hardness, that is one of the physical property of the metals. metals की ये सबसे बड़ी और important property है कि वो hard होते हैं. That is, now one by one we will study about the properties of metals as well as non-metals. First we will study about metals. Malleability. Malleability means by beating the metals को बीट करके यानी ठोक के उसका शीट बनाया जाता है. A thin sheet of metal is formed by beating the metals. For example, iron, लोहे को ठोक कर हैमर से ठोक कर आयरन की टिन शेड बनाई जाती है. टिन शेड वी यू नो व्हाट इज़ द टिन शेड. जो छत होती है, चद्दर बोलते हैं हम उसे, दैट इज़ द टिन शेड इज़ नथिंग बट malleability of iron. It is iron and it is converted, it is beaten up and formed into sheet. Then the another example, aluminium foil. Aluminium foil which we are using, जो aluminium foil हम फूड को पैक करने के लिए यूज़ करते हैं, दैट एल्यूमिनियम फॉइल इज़ ऑल्सो द प्रोडक्ट ऑफ मैलेबल ऑफ एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम को ठोक कर उसकी वो पतली शीट बनाई जाती है, दैट इज़ बिकॉज एल्यूमिनियम इज़ ऑल्सो मैलेबल इन नेचर. सेकेंड, it is ductility. Second property is ductility. These metals can be drawn into wires. metals को wires में हम वायर बना सकते हैं. metals can be drawn into wires, मतलब metals से हम वायर बना सकते हैं, and this wire it is strong. For example, iron का जो तार होता है, सरिया होता है जिससे हम हमारा घर की नींव बनाते हैं. घर की नींव बनाने में जो सरिया यूज़ होता है, दैट इज़ नथिंग बट द आयरन विच इज़ by the process of ductility, iron is converted into wire, that is a rod. Then the next one is conductivity. Conductivity means it can conduct heat as well as electricity. metals जो है heat को conduct करते हैं, मतलब heat पास करते हैं. it passes the heat, वो heat को convert करते हैं, it passes the heat and that is it consists or it conducts electricity as well as heat. metals जो है heat को carry करते हैं, and because of this property, और इसी property के कारण metals का use vessels बनाने में होता है. मतलब हमारे रसोई में जो सारे बर्तन होते हैं, all that vessels are because of the property of conductivity, it becomes hot. गैस पर रखने के बाद उसको हीट लगने से उसमें खाना हम कुक कर सकते हैं. वी कैन कुक द फूड, दैट इज़ बिकॉज इट इज़ कंडक्टिंग द हीट. हम वुड के इसमें खाना नहीं बना सकते, क्योंकि अगर हमने वुड को गैस पर रखा तो पहले वो लकड़ी का है, वो जल जाएगा.
राइट। हम तवा रखते हैं, वेसल्स रखते हैं, तपेली रखते हैं, कढ़ाई रखते हैं, ऑल दीज आर मेटल्स। ये सारी चीज़ें जो है ये मेटल्स की होती है। देन इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, इट कैरीज इलेक्ट्रिसिटी एंड देयरफॉर इफ़ यू सी, अगर आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक के जो भी वायर्स होते हैं, इलेक्ट्रिक के जो भी वायर्स होते हैं, सारे वायर्स के अंदर कॉपर या एल्यूमिनियम का तार होता है। दैट इज़ बाय द प्रोसेस प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू वायर। तो जो हाउस होल्ड हमारे वायरिंग होती है, हाउस होल्ड वायरिंग जो होती है उसमें कॉपर का यूज़ होता है, और जो ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रिसिटी होती है, जैसे ग्रिड से लेकर एक ग्रिड से दूसरी ग्रिड तक इलेक्ट्रिसिटी का हाई वोल्टेज अगर लाना हो तो वो वायर्स जो होती है उसमें जो मेटल होता है वो एल्यूमिनियम का होता है। दिस इज बिकॉज इट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, वेयर एज नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर। नॉन मेटल्स हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज सोनरस। सोनरस मीन्स इट मेक्स साउंड। जब एक दूसरे से वो टकराता है तो अच्छे से आवाज़ आती है। दैट इज़ वाई दैट प्रॉपर्टी इज़ यूज एंड इमेजिन द बेल विच इज़ इन द टेम्पल। घर मंदिर में जो घंटा लगा हुआ होता है उसमें जो बजाने के लिए जो बीच में जो रॉड होता है, इफ़ दैट इज़ ऑफ वुड, अगर वो टूट गया है और उसकी जगह अगर लकड़े का वो लगाया गया तो उससे आवाज़ नहीं आएगी। जो बेल का पेंडुलम है वो अगर टूट गया है, वहाँ पर अगर रिप्लेस करके वुडन का लगा दिया जाए तो उससे आवाज़ नहीं आती है। तो अगर वो मेटल का ही होगा, मेटल एंड द अदर मेटल व्हेन स्ट्रक इट गिव्स अ गुड साउंड, दैट इज़ इट स्ट्रक्स, इट इज़ गुड इन साउंड, उसका साउंड बहुत अच्छा होता है, एंड दैट इज़ वन ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल। मेटल इज़ लस्टरस। मेटल्स आर लस्टरस मीन्स इट हैज़ शाइन, उसमें चमक होती है, एंड बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी मेटल्स आर यूज फॉर मेकिंग द ऑर्नामेंट्स। और इसी प्रॉपर्टी के कारण मेटल्स का यूज़ ऑर्नामेंट्स बनाने में लिए होता है। ऑर्नामेंट्स यानी गहने बनाने के लिए सोना, चांदी, पीतल, ये जो चीज़ें हैं इसमें दे आर बिकॉज दे आर हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ लस्टर, कि उसमें वो शाइन करते हैं, उसमें चमक होती है, और उस चमक की वजह से उन मेटल्स का ही यूज़ ज़्यादातर ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए होता है। दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ विच वी कैन सी, जो हम बाहर से ही देख सकते हैं, उसे टच करके देख सकते हैं। सो द प्रॉपर्टीज़ विच वी कैन सी एज वेल एज वी कैन टच एंड फील, that properties are physical properties. Now we will study about the chemical properties of the metals and non-metals. Before studying the chemical properties, we will study the physical properties of non-metals. हमने metals के बारे में पढ़ा था, अब non-metals के बारे में physical property. They are not hard. मेडिकल non-metals जो होते हैं hard नहीं होते हैं, they are soft. Therefore दे कैनॉट बी बीटन इंटू शीट्स, उससे शीट्स नहीं बनाए जाते हैं, वो ब्रिटल होते हैं, वो टूट जाएंगे, ठोकते ठोकते वो टूट जाएंगे। देयरफॉर दे आर नॉन मेलिएबल एंड दे कैनॉट बी ड्रॉन इनटू वायर्स, उनसे वायर भी नहीं बनेगी। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों के भी पुअर कंडक्टर्स होते हैं। वो दे आर नॉट सोनरस, उनका एक आवाज़ नहीं आती है, दो आपस में टकराने से उनकी आवाज़ भी नहीं आएगी। सो नॉन मेटल्स आर जनरली सोनरस, दे आर नॉन लस्टरस, उनमें चमक नहीं होती है। जैसे सोने और चांदी में चमक होती है वैसे नॉन मेटल्स में चमक नहीं होती है। नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट, non-metals are generally soft in nature. So these are the physical properties of metals as non-metals. Now we will study about the chemical properties of metals. Now chemical properties of metals, how do these metals when come in contact with air, जब ये metals air के contact में आएंगे तो उस पर क्या reaction होगा।
The first is when it comes in contact with oxygen. You know, before this we will study what is the activity series. Activity series is nothing but a series in which arrangement is there, in which the elements are there, they are properly or they are in these series is such a series in which they are actively they are arranged, and they are because of it is activity series is nothing but a series in which these metals are reactively active. मतलब वो बहुत जल्दी एक्टिव होते हैं, और वो कैसे होते हैं वी विल सी. यूज दिस फर्स्ट रिएक्शन विथ ऑक्सीजन. In reaction with oxygen, when magnesium comes in contact with oxygen, it forms magnesium oxide. जब मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन के साथ बर्न होगा, इट विल फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड. मैग्नीशियम रिबन जब जलाई जाती है तो उससे सफ़ेद लाइट मीन्स द लाइट विथ इट विच बर्न्स, वो जब जलता है तो वाइट कलर का लाइट होता है, एंड दैट इज द मैग्नीशियम ऑक्साइड. मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म बाय बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम वायर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. Now we have seen the corrosion. Corrosion means a layer is formed. For example, we are familiar with the iron. Rusting of iron हमारे लिए एक बहुत familiar एक reaction है. अगर हम आयन कुछ नया वाला आयन के आइटम्स लाते हैं, then it is generally colored with the oil paint. आयन को ऑयल पेंट से जनरली कलर करके हम उसकी लाइफ बढ़ाते हैं. और अगर उसे कलर नहीं किया तो क्या होगा, व्हेन इट विल कम इन कांटेक्ट विथ एयर और वाटर और मॉइस्चर, एयर वाटर मॉइस्चर में के साथ जब उसका कांटेक्ट होगा, इट विल फॉर्म इट्स ऑक्साइड एंड इट विल फॉर्म फेरस ऑक्साइड. उसका ऑक्साइड तैयार होगा, एंड दैट इज़ नथिंग बट द रस्ट, दैट इज़ करोजन. That is called as a corrosion, and that is the reaction with oxygen. That is a metal. Iron is a metal. वो metal के साथ उसका reaction होता है और उस पर rust का layer form होता है. Another example will give a copper plates. Copper plates, the example हमारे घर में पूजा के लिए जो तांबे के बर्तन इस्तेमाल किए जाते हैं, right? The reddish one, that is copper vessels. So what is this? When it comes in contact with the air and water. रोज हम पूजा के लिए वो बर्तन यूज़ करते हैं, पूजा के लिए वो बर्तन यूज़ करते हैं, उस पर आप देखोगे ग्रीनिश कलर का लेयर आ जाता है. That greenish color layer is nothing but it is the reaction with oxygen. That is the reaction with oxygen, and that is the corrosion which occurs in that plates. Now displacement of one metal by another. जब एक मेटल दूसरे मेटल के साथ मिक्स हो रहा है तो उसमें जो चेंज होता है, जो डिस्प्लेसमेंट होता है, मीन्स दैट चेंजेस टेक्स प्लेस, एंड दैट इज कॉल्ड एज अ डिस्प्लेसमेंट. व्हेन आयरन इज नेल, सपोज एन आयरन नेल, एक खील नेल जो होता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में अगर डाल दिया जाता है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एक बीकर में लेना है, उस बीकर में आपको एक खील डालनी है, तो आप देखोगे कि थोड़ी देर में ये कॉपर सल्फेट का जो SO4 है वो SO4 आयन के साथ आ जाएगा, एंड इट विल डिस्प्लेस कॉपर. कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा एंड सल्फर ऑक्साइड विल कम विथ iron, that is ferrous sulfate will form and copper will be displaced off. This reaction is called displacement of one metal by the another metal. Now displacement of hydrogen from water. When sodium, two molecules of sodium is added with water molecules, it forms sodium hydroxide. उसका सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा. That is it is oxide will form. Displacement of hydrogen from acid. When sodium is added to acid, that is hydrochloric acid, it will form its salt. Salt solution तैयार होगा, that is two molecules of sodium chloride will be formed and hydrogen gas will be evolved. So these are the chemical properties of metals. Now let us study about the chemical properties of non-metals.
Now we are going to study about the chemical properties of non-metals, action of air, hydrogen as well as oxygen. These are the non-metals. That is, when it comes in contact, it forms water with a pop sound. जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस is mixed, when it is mixed, it makes a pop sound and water is formed. Action of water. Chlorine as well as hydrogen, oxygen, that is two molecules of chlorine and water. When it forms 4 molecules of hydrochloric acid and oxygen gas is released. Displacement of one non-metal by another from a salt solution. जब एक non-metal और another salt solution में उसका means displacement होता है तो क्या होता है? Chlorine with sodium bromide. क्लोरीन जब सोडियम ब्रोमाइड के साथ मिक्स होता है, इट फॉर्म्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड ब्रोमीन इज रिलीज्ड. Here the another example, 2 molecules of chlorine when mixed with 2 molecules of sodium chloride, it forms sodium chloride and chlorine and iodine gas is released. So these are the chemical properties of non-metals. Now uses of metals. Where are these metals used in our day to day life? हम ये नॉन मेटल्स और मेटल्स को हमारे जीवन में कब और कैसे इस्तेमाल करते हैं? दैट इज़ द यूजेस ऑफ मेटल्स. द कॉपर इज़ जनरली यूज इन द डोमेस्टिक वायरिंग. हमारे घर में जो भी इलेक्ट्रिक फिटिंग के जो वायर्स होते हैं, हमारे घर में जो आयरन होती है, हमारे घर में जो वॉशिंग मशीन होती है, मिक्सर होता है, फ़ैन चलता है, उसमें वायरिंग जो होती है वो सारी इलेक्ट्रिक केबल वायर, सारी वायर्स में कॉपर का यूज़ होता है. मैंने आपको पहले भी बताया था, कॉपर इज़ यूज बिकॉज इट इज़ हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कैरी कर सकते हैं एंड दैट इज़ वाई कॉपर इज़ जनरली यूज इन आवर हाउस होल्ड वायरिंग. आयरन, द मोस्ट स्ट्रॉन्गर मेटल, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर मेटल जो है वो आयरन का होता है. दैट इज़ वाई आयरन is used for the construction of tools, machine parts in the construction works. कंस्ट्रक्शन वर्क्स में पिलर्स बनाने के लिए, जिस पर पूरी बिल्डिंग की नींव खड़ी होती है, उस पिलर्स को बनाने के लिए आयरन का यूज़ होता है. बड़े बड़े ब्रिजेस जो बनते हैं उसमें सारे पिलर्स जो होते हैं वो आयरन के होते हैं. रेलवे ट्रैक्स पर जो रेलवे, इतनी भारी भरकम रेलवे चलती है, वो रेलवे ट्रैक जो बनता है वो ट्रैक भी आयरन का ही रहता है. इमेजिन, बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रेंथ ओनली इट इज़ यूज्ड फॉर द रेलवे ट्रैक. द थर्ड यूजेस ऑफ मेटल्स इन ऑल द वेसल्स. हमारे घर में जो भी सारे बर्तन हैं, सारे बर्तन जो होते हैं वो मेटल्स के बने हुए होते हैं, बिकॉज इट हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट. मैग्नीशियम, आई हैव एक्सप्लेन यू, मैग्नीशियम व्हेन इट इज बर्न्ड it gives white light, and because of that this property magnesium is used in fireworks. मैग्नीशियम जो है वो fireworks में काम आता है. mercury is used in thermometer because it expands, it has the property that it expands on heating. जब बुखार आएगा तो आपका टेम्परेचर नॉर्मली बढ़ेगा, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो मर्क्यूरी के कांटेक्ट में आएगा तो वो इट विल एक्सपांड एंड इट विल इंक्रीज द टेम्परेचर शो करेगा, एंड बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी इट इज़ यूज्ड इन थर्मोमीटर्स. द नोबल मेटल्स आर द मेटल्स विच आर सिल्वर, कॉपर, gold. Silver, copper and gold, these are called as a noble metals, and these silver, copper, gold or platinum, these are used for making ornaments. in metals के ductility property से, means wires बनाने के property से it can be drawn into wire, and because of this property these metals are used for making ornaments बनाने के लिए इसका use किया जाता है. Alloys are nothing but mixing of 2 or more metals. 2 से ज़्यादा metals जब तैयार होता मिलाए जाते हैं, it forms the alloys. And you know if you have gone with your parents to the gold shop,
गोल्ड ज्वेलरी लेने के लिए ज़्यादातर आप लोग तो नहीं जाते हो, पर आपने सुना होगा कि जो गोल्ड होता है वो 24 कैरेट होता है, 23 कैरेट होता है, 22 कैरेट होता है। तो ये कैरेट क्या होता है? दैट इज इट इज़ द नंबर परसेंटेज ऑफ एलॉयज, मीन्स amount of alloys or the different metals which are added into gold, silver or platinum. Gold is very soft. आप गोल्ड को हाथ से मोड़ोगे तो वो मुड़ जाएगा, इट इज़ नॉट स्ट्रॉन्गर। तो उसके ऑर्नामेंट स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए उसमें गोल्ड में कुछ परसेंटेज के कॉपर मिलाया जाता है, कुछ परसेंटेज का उसमें सिल्वर मिलाया जाता है। तो इससे वो गोल्ड की ऑर्नामेंट्स जो बनते हैं वो स्ट्रॉन्ग बनते हैं ताकि वो मुड़े नहीं। देन एल्यूमिनियम फॉइल। एल्यूमिनियम फॉइल इज़ यूज वर्ल्ड वाइड फॉर पैकेजिंग ऑफ द फूड मटेरियल्स। फूड मटेरियल्स को पैक करने के लिए एल्यूमिनियम फॉइल का यूज़ होता है बिकॉज इट इज़ चीपर, इट इज़ प्रोटेक्टिव, इट कीप्स द फूड फ्रेश and because of this property it is used. These metals generally you might have seen the artificial teeth, जो अगर आपने देखा है परमानेंट टीथ एंड टेम्पररी टीथ। जो आर्टिफिशियल अगर कोई एक दांत टूट जाता है तो वो टूटा हुआ दांत की स्पेस खाली रहती है, वो अच्छा नहीं दिखता है। तो वो प्लेस भरने के लिए आपको जो डेंटिस्ट के पास अगर आप जाओगे तो आपने देखा होगा वो आर्टिफिशियल टीथ लगा देते हैं। वो सोने का हो सकता है, चांदी का हो सकता है या अदर मेटल प्लेटिनम का हो सकता है। सो दीज मेटल्स दे आर नॉन करोसिव। जो नोबल मेटल्स होंगे उस नोबल मेटल का टीथ आपको लगाया जाता है। दैट इज़ बिकॉज ऑफ दीज। जब फीलिंग होती है, अगर आपके दांतों में सड़न हो गई है तो वो फीलिंग करने के लिए भी कुछ मेटल्स का यूज़ करके वो मेटल्स आपको आपके दांतों में फीलिंग की जाती है। सो दीज मेटल्स आर यूज्ड फॉर द following purpose. Now let us study about the uses of non-metals in the nature. Now we will study about the uses of non-metals. The uses of non-metals, the non-metals which are oxygen, nitrogen, carbon, sulfur, chlorine, iodine and noble gases. These are the non-metals. Where are these non-metals used? Oxygen. Oxygen is used in the process of combustion. That is for the burning. That is for the process of burning. This combustion means the electricity, or it is used for generating heat, as well as it is used for the process of respiration, as well as the welding works to join the two iron bars. This oxygen is used. It is also used in the extraction of metals from the metal ores. Metal ores में से metals को extract करने के लिए भी ऑक्सीजन का यूज़ किया जाता है। ऑक्सीजन इज़ ऑल्सो यूज मेनली एज अ रॉकेट फ्यूल। रॉकेट फ्यूल के लिए भी ऑक्सीजन ही रॉकेट फ्यूल में रॉकेट का फ्यूल एज अ फ्यूल इट इज़ यूज। द अनदर नॉन मेटल इज नाइट्रोजन. वी नो नाइट्रोजन इज यूज for it synthesizes proteins. It is used to preserve the blood as well as the eyes, that is corneas, as well as the donated organs which are donated by the people. Before it is transplanted to the patient, it is preserved in nitrogen. As well as it is used to fill the food packets. हम जो बाहर से रेडी टू ईट फूड लाते हैं, रेडी टू ईट मीन्स चिप्स होते हैं, हमारा जो भी रेडी टू ईट मटेरियल, उसमें हवा में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो वो उसमें हवा नहीं होती है, उसमें नाइट्रोजन गैस होता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट नाइट्रोजन गैस दैट फूड रिमेन्स फ्रेश इन दैट पैकेट। उस पैकेट में वो खाना जो होता है, जो भी फूड आइटम होता है, वो फ्रेश रहता है। इट इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स के प्रोडक्शन में आपने देखा है नाइट्रोजन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया एज वेल एज यूरिया। अमोनिया और यूरिया के प्रोडक्शन में नाइट्रोजन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। देन नाउ द अनदर नॉन मेटल इज कार्बन. Carbon is generally found in two forms, that is diamond and graphite. Diamond is used for cutting the glass as well as in the mining industries. Mining industries में diamond
सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ग्राफाइट इज़ यूज एज एन इलेक्ट्रोड। जो हमारे बैटरीज होती है उसमें बैटरीज में इलेक्ट्रोड के लिए ग्राफाइट सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है एंड ऑन बिकॉज ऑफ दैट ओनली आवर बैटरीज आर वर्किंग। इट इज़ ऑल्सो यूज एज अ लुब्रिकेंट, एज अ लुब्रिकेटिंग ऑयल। lubricant graphite is used. Graphite is also used in the pencils बनाने के लिए भी graphite का use किया जाता है। The another metal, non-metal is sulfur. Sulfur is used in the production of dyes and colors. It is used in the matchboxes. मैच बॉक्स बनाने के लिए, मैच स्टिक बनाने के लिए सल्फर का यूज़ होता है। इट इज़ यूज इन द फायरवर्क्स, पटाखे बनाने के लिए भी सल्फर का यूज़ होता है। इट इज़ यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ फंगिसाइड टू किल द जर्म्स को किल करने के लिए जो मेडिसिन बनाए जाते हैं, इट इज़ यूज इन फंगिसाइड एज वेल एज इन द प्रोडक्शन ऑफ रबर। लैटेक्स रबर प्लांट से जो उसमें सल्फर का ऐड करके उसका रबर बनाया जाता है। देन क्लोरीन इज यूज्ड मोस्टली फॉर डिसइंफेक्टिंग वाटर, दैट इज एज अ cleaning agent for the water. Chlorine is used as a bleaching agent, it is used. Then iodine is used as a antiseptic solution। आपको अगर कुछ वुंड्स हो जाते हैं, जख्म हो जाती है तो उसको साफ़ करने के लिए, डिसइंफेक्ट करने के लिए आयोडीन का यूज़ हो जाता है। By using iodine you can prevent certain diseases like goiter you have seen study because of the deficiency of iodine the disease can be prevented, that is goiter. The noble gases, helium, neon, argon, these are the noble gases. These noble gases are used to fill up the balloons which raise high up in the sky, as well as by the divers in water. They are, for some studies they are going in the sea and they are using these noble gases, as well as argon gas is present in the electric bulb के अंदर जो गैस होता है, that is the noble gas, which is these metals and non-metals play an important role in our day-to-day life.